students, welcome to Shri Sid Vidyapith School. I hope you all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin your lesson Daffodils. Daffodils is a poem written by William Wordsworth. William Wordsworth is a British poet who was deeply influenced by the beauty of nature. William Wordsworth's poem naturally deals with the nature, the beauty of nature. In his poems, we find that he mostly describes about any scenic beauty, any nature, the beauty of nature, and he is also noted as a nature poet. So, students, let's start it. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. In the first verse of the poem, poet ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ I poet अपने आप को बता रहे हैं, I wandered lonely as a cloud. मैं एक क्लाउड की तरह अकेला घूम रहा था. That floats on high over vales and hills. A cloud जैसे hills और valleys के ऊपर, vales means valleys के ऊपर float होता है, वैसे मैं यहाँ अकेला घूम रहा था. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. And suddenly, all at once मुझे एक in a crowd, a host of golden daffodils. मुझे फिर सडनली एक भीड़ सी When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. And suddenly, all at once मैंने एक crowd, a host of golden daffodils देखा. The scene attracted me so much. There was a golden daffodils, a crowd of golden daffodils. मतलब बहुत सारी daffodils की पूरी बागीचा थी वहाँ. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. कहाँ थे daffodils? Daffodils lake के बगल में थे, trees के नीचे थे, fluttering and dancing in the breeze. वो हवा के साथ डांस कर रहे थे. They were dancing, they were fluttering. क्यों? वहाँ हवा चल रही थी. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Daffodils कैसे दिख रहे थे? They were looking like a stars on a Milky Way. क्यों यहाँ पोएट स्टार्स के साथ डैफोडिल्स को कंपेयर किए? क्योंकि स्काई में स्टार्स भी कितने सारे होते हैं. दे वर काउंटेबल, बहुत सारे होते हैं. दे वर न्यूमरस. वैसे ही लेक के बगल में डैफोडिल्स भी बहुत सारे थे. There were so many daffodils beside the lake. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. और वो कैसे थे daffodils? पूरे बे, यह बे में लेक के मार्जिन में, मतलब लेक के बगल में, वो पूरे एक कोने तक पूरे फैले हुए थे. daffodils पूरे फैल गए थे. There were so many daffodils beside the lake. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. 10,000 यहाँ पोएट गिने नहीं कि 1 2 1 2 3 4 या कितने सारे डैफोडिल्स हैं. ही वॉज जस्ट सेइंग दिस. 10,000 मीन्स जब पोएट ने डैफोडिल्स की सीनरी को देखा तो वो पोएट्स को कैसे लगे? दे वर लाइक 10,000 डैफोडिल्स. मतलब वहाँ जैसे हज़ारों डैफोडिल्स थे जो अपने सर हिलाकर नाच रहे थे. नेक्स्ट. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee.
A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. The waves beside them danced, but they, the waves, लेक जो waves थे वो भी डांस कर रहे थे, पर कौन अच्छा नाच रहे थे, डैफोडिल्स या वेव्स? डैफोडिल्स। पोइट यहाँ बता रहे हैं कि द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, वेव्स भी नाच रहे थे लेकिन डैफोडिल्स वेव्स से अच्छे नाच रहे थे। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, जब वेव्स का जब सन का रेस वेव्स के ऊपर पड़ रहे थे और वो रोशनी से जब डैफोडिल्स चमक रहे थे, they were shining like a sparkling waves. A poet could not but be gay in such a jocund company. A poet could not but be gay मतलब जब वेव्स और वहाँ के आसपास के सारे वातावरण इतने हैप्पी हो गए, जॉकॉन मीन्स हैप्पी, मेरेली, तो मैं क्यों नहीं हो सकता, पोइट क्यों नहीं हो सकते, पोइट क्यों नहीं हैप्पी हो सकते? जब आसपास का एटमॉस्फेयर इतना हैप्पी हो गया, इतना मेरी है वहाँ का, तो पोइट क्यों नहीं हो सकते? आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ दिस शो टू मी हैड ब्रॉट। और पोइट देखते ही रह गए, बस वो देखते ही रह गए। गेज्ड मीन्स he was just looking at daffodils, how they were dancing, what they were doing. But little thought, यहाँ little thought मतलब not poet की थोड़ा सोच रहा है, he was not thinking at all, वो किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, बस वो daffodils की तरफ देख रहे थे तो देख रहे थे। What the wealth that show to me had brought, मुझे इसके अलावा और क्या चाहिए? ये सीन इतना अच्छा है, इतना सुंदर सीन था। The daffodils were dancing, fluttering, they were sparking. ये सीन इतना अच्छा था कि पोएट तभी वो सीन को रियलाइज़ नहीं कर पाया। He realized later, पोएट ये सीन को बाद में रियलाइज़ किए कि मैं इतना अच्छा ब्यूटी को मिस कर दिया। ये चीज़ अब नेक्स्ट स्टैंज़ा में पढ़ेंगे। For often, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. इसमें ये स्टैंज़ा में पोएट बैक टू रियलिटी मीन्स इससे पहले पोएट जो भी सोच रहे थे या फिर जो भी फील कर रहे थे वॉज फीलिंग गुड, अब वो रियलिटी में आ गए। अब बता रहे When on my couch I lie, जब भी मैं अपने काउच पे लेटा रहता हूँ, in a vacant or in pensive mood, in a vacant means खाली जगह, और in pensive mood means in a sad mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. They flash upon that inward eye means they means here daffodils, यहाँ पोएट they daffodils को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब भी पोएट अपने आँख बंद करते हैं तो डैफोडिल्स उनको उनकी लाइक वी इमेजिन, जैसे हम लोग आँख बंद करते हैं तो हमें कुछ भी चीज़ जैसे दिखाई देता है, वैसे पोएट डैफोडिल्स को विजन कर रहे थे। ही वॉज इमेजिनिंग डैफोडिल्स, उनको डैफोडिल्स उनके आँखों पे दिख रहा था, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये चीज़ उनको खुशी दे रही थी। और ये चीज़ ये खुशी, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मीन्स अकेलापन, और ये खुशी हम सिर्फ अकेलेपन में ही महसूस कर सकते हैं। हम किसी भीड़ में रहेंगे तो हमें कोई चीज़ अच्छी चीज़ कभी भी याद नहीं आएगी। जब हम अकेले रहते हैं तो कोई हमें अच्छी चीज़ याद आती है या फिर हमें वो चीज़ इमेजिन करते हैं हम वो चीज़ को। And then my heart with pleasures fills and dance with the daffodils. And then उसके बाद पोएट का हार्ट, जैसे ही उन्होंने डैफोडिल्स को विजन किया, डैफोडिल्स उनको इमेजिन किया डैफोडिल्स को, तो उनका हार्ट खुशी से भर गया और उसके बाद वो भी डैफोडिल्स के साथ डांस करने लग गया। तो हम फर्स्ट स्टैंज़ा में ये पढ़े थे कि पोएट एक लोनली स्टेट में रहते हैं, पोएट
ऐसे दिखाया जैसे पोएट बहुत सैड है, ही वॉज लोनली, और सडनली उनको डैफोडिल्स की क्राउड दिखाई देती है जिनसे उनको उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर वो बताते हैं कि डैफोडिल्स कैसे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, दे वर डांसिंग, कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे वेव्स के साथ डांस कर रहे, कितने सारे थे, दे वर न्यूमरस लाइक स्टार्स ऑन स्काई, और कितनी दूर तक फैले हुए थे, और उसके बाद कैसे चमक रहे थे वेव्स के शाइनी ग्लिटर्स में। उसके बाद बताया कि इतना अच्छा वेदर था, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था कि कोई भी उसमें हैप्पी हो जाएगा, उस वातावरण में घुल मिल जाएगा, इतना पीसफुल था। ओके, एंड Wordsworth's poem deals with emotions recollected in tranquility. Means Wordsworth की poems mostly वो जब कोई सीनरी देखते हैं, कहीं कोई जगह जाते हैं तो सीनरी देखते हैं तो वो तुरंत नहीं लिखते, वो तुरंत उसको पोएम में नहीं लिखते हैं। वो उस वहाँ से, वो सीनरी से आने के बाद, वो प्लेस से आने के बाद कुछ समय बाद उसको पोएम में लिखते हैं। इट्स कॉल्ड अ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मीन्स वर्ड्सवर्थ कोई भी चीज़, जैसे अभी हम लोग कोई चीज़ देखे, हमें पसंद आई तो हम उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। नो, वर्ड्सवर्थ डोंट डू लाइक दैट। ही ऑलवेज यूज टू, वो चीज़ को देखते थे, वापस आने के बाद कुछ समय बाद, जैसे वो अकेले बैठे हों या फिर उनका मूड अच्छा ना हो, तो उस टाइम वो पोएम में लिखते थे। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है। In the next video we are going to solve the question and answers of this chapter. If you have any doubts related to this poem, you can ask me. I am going to clear it out in the next video.